So next is एक statement है about family of lines. ठीक है, मान लीजिए you have two lines like this. This line is L1 is equal to 0. This line is L2 is equal to 0. L1 का मतलब तो एक्सप्रेशन होता है ना, जैसा फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो 2x प्लस 3y प्लस 5 जो टर्म है उसको मैं L1 मान रहा हूँ. And L2 is the second expression is equal to 0. This is a linear expression. This is another linear expression. So first linear expression is equal to 0 is first line. The second linear expression is equal to 0 is the second line. Okay. Now the statement is something like this. देखिए statement क्या है? Any line passing through the point of intersection of the lines L1 and L2 is equal to 0 is of the form L1 plus lambda L2 is equal to 0. ठीक है, मान लीजिए you have a point of intersection, you draw a line through the point of intersection. So इस point of intersection से कितना lines draw कर सकते हैं? How many lines can be drawn through this point of intersection? The answer is infinite lines. So infinite lines को एक equation में तो हम बंद नहीं कर सकते. So the statement looks like this. The family of lines, इस point से जाने वाला सारा lines को एक family मान लिया तो the family of lines passing through the intersection of lines L1 is equal to 0 and L2 is equal to 0 is simply L1 plus lambda L2 is equal to 0, where lambda is a variable constant. This is the statement. क्या है? The family of lines passing through the intersection of the lines L1 and L2 is equal to 0 is given by L1 plus lambda L2 equal to 0. ये लैम्डा के प्लेस में अलग अलग नंबर सब किया तो आपको अलग अलग लाइन्स आएगा. समझ रहे? बहुत सारे लाइन्स होगा ना. एज वी हैव सीन देयर आर मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट? सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल लैम्डा का वैल्यू 1 पुट किया, इसमें एक लाइन आएगा. लैम्डा का वैल्यू 2 पुट किया, दूसरा लाइन आएगा. 3 पुट किया, तीसरा लाइन. 2.1 पुट किया, एक और लाइन. ऐसा लैम्डा के प्लेस में अलग अलग नंबर्स पुट किया तो आपको अलग अलग लाइन्स आएगा. क्लियर है? Okay. Does this happen? एक एग्जाम्पल करके हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, 2x प्लस 7 is equal to 0. The other line is x minus 3y plus 4 is equal to 0. दो लाइन. Now if I ask you what is the line, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों लाइंस को मैं रफली ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, so let us consider this as my first line, this as my second line. Okay? So this line is 2x plus 3y plus 7 is equal to 0. Roughly my, and this line is x minus 3y plus 4 is equal to, okay. Want passing through the point intersection of two lines. Okay, इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना पड़ेगा. इस 1 होना चाहिए, इसका स्लोप 1. ओके, I want a line which passes through the point of intersection of these two lines having slope 1. So ऐसा
क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो व्हाट इज द जनरल दैट यू कैन थिंक ऑफ? कुछ स्टेप्स में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। कैसे? फर्स्ट स्टेप में आप क्या करिएगा अगर जनरल मेथड से करना है तो? द मेथड इज सिंपली फर्स्ट ये दोनों लाइंस को हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल सकते हैं, राइट? सही है क्या नहीं? You can find the point of intersection of these two lines by solving these two lines, right? And once you get the point of intersection, आपके पास point of intersection, the line has to pass through this point. So एक point है, एक slope है. Point slope form use करके आप equation निकाल सकते हैं क्या नहीं? Yes or no? Yes, sir. ये general method है, ठीक है? Now this statement works as a shortcut to do the process. यही process का एक shortcut है ये method. So using this method, how will you solve this? मैं क्या बोल रहा हूं? Any line passing through this point, any line passing through this point can be written as what? L1 plus lambda L2 is equal to 0, right or wrong? सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? देखिए, any line passing through the point of intersection of these two lines can be written as 2x plus 3y plus 7 plus lambda times x minus 3y plus 4 is equal to 0. सही है क्या नहीं? Yes or no? Yes, sir. आप ध्यान से बोल सकते हैं, इफ यू सी केयरफुली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज वर्किंग. अब ध्यान से देखिए, व्हाई इज दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस? आप कुछ रीजनिंग के तरफ से सोच सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ सम रीजनिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग? कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए अल्फा कमा बीटा है, if the point of intersection is alpha comma beta, this alpha comma beta satisfies the first equation, right? इसका मतलब ये अल्फा कमा बीटा इस लाइन पे पुट किया तो कितना आएगा? 0 आएगा, right? And this alpha comma beta lies on the second line also. सही है क्या नहीं? This alpha comma beta lies on the second line also. So second line में भी आप alpha comma beta पुट किया तो ये भी 0 आएगा या नहीं? So effectively ये पूरा इक्वेशन में अल्फा कमा बीटा पुट किया तो will this equation be satisfied or not? 0 इक्वल टू 0 आएगा. क्या है बेटा? आएगा. 0 इक्वल टू 0 आ रहा है ना? Now can you say that this line, देखिए ये लीनियर इक्वेशन है ना? This is a linear equation or a quadratic equation? ये तो लीनियर इक्वेशन है. हम थ्योरी में क्या देखे? एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन, राइट? कैन यू से दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन? ये वाला इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है क्या नहीं? Yes or no? Yes, sir. Because it's a linear equation. So this is a straight line and the point of intersection alpha comma beta, ये जो alpha comma beta जो है point of intersection, ये इस लाइन को satisfy कर रहा है क्या नहीं? Right? So that means this is a straight line passing through the point alpha comma beta, right? So I can say that this is a straight line passing through the point of intersection of these two lines. Okay. So this is a general straight line. हमको जो चाहिए वो straight line नहीं है ये. This is a general straight line जिसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट है. लैम्डा अलग अलग वैल्यूज पुट किया तो अलग अलग लाइंस आएगा. बट मुझे कौन सा लाइन चाहिए? आई वांट दैट पर्टिकुलर लाइन व्हिच इज हैविंग व्हाट? व्हाट इज द क्वेश्चन? स्लोप इज 1, राइट? सो लैम्डा क्या पुट करने से इस लाइन का स्लोप 1 आएगा? दैट्स व्हाट यू नीड टू फाइंड. वो कैसे फाइंड करेंगे? इस लाइन का स्लोप निकाल के उसको 1 से इक्वेट करेंगे, राइट? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ
What is the formula for slope of a straight line? एक स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या है? बोल सकते हैं? माइनस ए बाई बी, माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट बाय y कोएफिशिएंट, राइट? क्लियर? सो इस पर्टिकुलर लाइन का माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट बाय y कोएफिशिएंट को हम 1 से इक्वेट करेंगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को बैक सब्स्टिट्यूट किया तो आपको आंसर आ जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट इज द x कोएफिशिएंट बोलिए. अब ध्यान से देखा तो दिस लाइन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फर्स्ट मैं इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x कोएफिशिएंट x टाइम्स व्हाट इज x कोएफिशिएंट, x के साथ क्या क्या है देखिए. हाँ, लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2 है ना, ये दिख रहा है आपको. एंड y के साथ क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? 3 minus 3 minus 3 lambda, 3 lambda. And what is the constant? 7 plus 4 lambda. Okay or not? Is equal to 0. Okay, clear? Now what is the equation that I need to solve? Minus of 2 plus lambda by 3 times 1 minus lambda is equal to कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, right? The slope minus of x coefficient by y coefficient should be equal to 1. So this implies minus 2 minus lambda is equal to 3 minus 3 lambda. 2 lambda is equal to 1. So lambda is equal to कितना होना चाहिए? Right or wrong? या मैं गलत कर लिया, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. 1 नहीं है, क्या होना चाहिए? 1 नहीं है ना वहाँ, सही से देखिए. सो 2 lambda is equal to 5 होना चाहिए, राइट? सो lambda is equal to 5/2. ओके, इसका मतलब अगर lambda 5/2 है तो दिस लाइन विल पास थ्रू, सॉरी दिस लाइन विल हैव अ स्लोप ऑफ 1 यूनिट. ओके, सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है जो हमको चाहिए? सो लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 जो है यहाँ पुट कर लेता हूं. सो सिंपली L1 प्लस 5/2 टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0. सही है क्या? yes sir, इसी एक्सप्रेशन को मैं L1 मान रहा हूं. ओके, इस एक्सप्रेशन को L2 मान रहा हूं. सो लैम्डा 5/2 होना चाहिए. सो L1 प्लस 5/2 L2 इक्वल टू 0. यू अगेन डोंट नीड टू वरी अबाउट द फ्रैक्शंस, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए. सो क्या आएगा? 2L1 प्लस 5L2 इज इक्वल टू 0, राइट? इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? फर्स्ट लाइन को 2 से, सेकेंड लाइन को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके इज इक्वल टू 0 इक्वेट कर लीजिए. दैट विल बी द रिक्वायर्ड लाइन. है कि नहीं? नोट किया? सर स्लोप 1 कैसे आया? स्लोप 1 कैसे आया सर? ठीक है, इसीलिए स्लोप 1 आने के लिए हम सॉल्व किया ना. ठीक है, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, लैम्डा कुछ भी इस पॉइंट से जाने पर. मुझे लैम्डा ऐसा चाहिए सच दैट द स्लोप इज इक्वल टू 1. सो वी हैव सॉल्व द इक्वेशन, स्लोप का 1 होगा. आपको आया कि लैम्डा 5/2 है तो स्लोप 1 आ जाएगा. सो लैम्डा वापस 5/2 आप सब्स्टिट्यूट किया. ओके, एक बार चेक करेंगे ये इज इक्वल टू 0 लिख के हम देखेंगे एक्चुअली स्लोप 1 आ रहा है क्या नहीं. ओके, क्लियर? yes sir, सो द आंसर आई एम गोइंग टू गेट इज, देखिए ये नोट किया पूरा. yes sir, Okay, so the answer is simply like this. देखिए 2 times L1, right? So देखिए 2 times, what is the first line बोलिए? First line बोलिए 2x plus, what is the first line? 2x 3y plus 7, plus 7 plus 5 times, what is the second line?
x x minus minus 3y plus 4. प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशंस करके देख लीजिए। 4x प्लस 5x 9x आया। ओके Yes, sir. नेक्स्ट 6y माइनस 15y कितना है? 6y माइनस 15y minus 9y. Minus 9y. माइनस 9y एंड 2 into 7 14 प्लस 20 कितना? प्लस 34 इज इक्वल टू 0। इस लाइन स्लोप 1 हुआ या नहीं हुआ? हुआ. है ना? स्लोप इज 1 माइनस ऑफ 9 by minus slope we have checked that is equal to 1. okay समझ में कि नहीं? Yes, sir. सो लैम्डा इसी कंडीशन के लिए फाइंड किया सच दैट द स्लोप इज 1। सो ऑब्वियसली जिस कंडीशन के लिए सॉल्व किया उसको वापस सब्स्टिट्यूट किया तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा ना, राइट? Yes, sir. सो पूरा समझ में आया आपको पूरा क्वेश्चन? और भी क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेज में जाओ। Shall I go to the next page? Yes, sir. Have next question. Okay. The line is x minus 2y is equal to 5 and 4x plus 3y is equal to 8. Okay. These are the two lines. Okay. Find the equation of a line through the point of intersection of these two lines and passing through 2, 5. इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा है, दो लाइंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये L1 is equal to 0 या L2 is equal to 0. Okay, this is the first line, this is the second line. Now what do you want? You want a line passing through the point of intersection of these two. मतलब है इस पॉइंट से जाने वाला चाहिए, ठीक है? इस पॉइंट से जाने वाला बहुत सारा लाइंस होगा, उसमें वो पर्टिकुलर लाइन चाहिए जो 2, 5 मान है यहाँ। ओके, दिस इज माय पॉइंट ए, मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो कौन सा लाइन चाहिए? मतलब ऐसा जाने वाला लाइन चाहिए। ओके, क्लियर है क्या नहीं? सो अगर नॉर्मली करना है तो ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आपके पास है, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, राइट? Yes, sir. मेहनत, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना आपको, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो शॉर्टकट क्या है? लेट अस यूज आवर स्टेटमेंट. So any line passing through the point of intersection is given by L1. L1 क्या होगा? x minus 2y minus 5 होगा। समझ में आए? 5 को आप इस तरफ लेके, then only that becomes L1. Okay, this is L1 plus lambda times क्या होगा? 4x plus 3y minus 8. Okay, is equal to 0. Okay, clear है क्या नहीं? Yes, Now, sir. now what is this line? ये क्या है? This is a general line which passes through the point of intersection of two lines. अब आपको कौन सा लाइन चाहिए? Do you want any particular line or do you want a specific line? I want a specific line which passes through the point 2, 5, right? सही क्या नहीं? So
मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम द लाइन passes through 2,5, सही है क्या नहीं? इसका मतलब क्या होना चाहिए? 2 का सेटिस्फाई पड़ेगा ना, सही क्या नहीं? Yes, sir. 5 उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. सो पुट कर लीजिए एक्स एंड वाई के प्लेस में. 2 माइनस 10 माइनस 5, सही है क्या नहीं? x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 पुट किया मैंने. प्लस लैम्डा टाइम्स कितना होगा बोलिए? 8 प्लस 15 माइनस 8 is equal to 0, right? This implies कितना होगा? minus 13 plus lambda times 15 is equal to 15. so lambda is equal to कितना आएगा? 13 by 15, okay? When lambda is equal to 13 by 15, particular केस में मेरा लाइन जो है वो 2,5 पॉइंट से जा रहा है. क्लियर है? लाइन के इक्वेशन के लिए क्या करना है? You take this lambda and put it in this equation. Again, you don't need to worry about fraction. क्यों? LCM ले सकते हैं. So what is the required line? It is nothing but 15 by 15 put किया तो 15 LCM हो जाए. So the required line is what? 15 times L1 plus 13 times L2 is equal to 0. है क्या नहीं? Yes, sir. इसका मतलब you just need to multiply the first line, that is x minus 2y minus 5 by 15 and the second line by 13. Okay. समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. कैलकुलेशंस कर सकते हैं अपने से? यहाँ छोड़ रहा हूं मैं. Yes, sir. So और कैसे कंडीशंस दे सकते? कंडीशंस Shall I go to next question? Shall I go to next question? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस बार मान लीजिए एक इस बार क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूं, आपको सोचना पड़ेगा इस बार. एक लाइन है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दूसरा लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ओके. I want a line which is passing through the point of intersection of these two lines. Okay. I want a line which is passing through the point of intersection of these two lines. इसका मतलब इस point से तो जाना है. Okay. And having the least perpendicular distance from a point 1, 3. ध्यान दे दीजिए, इस तक थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा. क्वेश्चन देख 1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से रिलेटेड लग, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो है ना. I want a line which is passing through the point of intersection of these two lines. इस पॉइंट से तो जाना पड़ेगा. एंड बोल रहे हैं कि एक पॉइंट ए है 1, 3, कहीं भी हो सकते हैं. एंड ये लाइन it should have
what? The least नहीं है, the greatest perpendicular distance. क्या है? Greatest perpendicular distance. Okay. So आपका क्वेश्चन है, अब आपको ये सोचना है, देखिए इस पॉइंट से बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ ना मैं. हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन अगेन? ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस. बहुत सारा लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ ना मैं. इस पॉइंट से बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना. अलग अलग लाइंस का अलग अलग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, सही क्या नहीं? इस लाइन अगर लिया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला लाइन लिया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. इफ यू टेक दिस लाइन, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इफ यू टेक दिस रेड लाइन, this will be the perpendicular distance. Okay, so you have different perpendicular distances. आपको वैसा वो लाइन चाहिए जो जिसका perpendicular distance सबसे ज्यादा है. So how can you get the line? So आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लाइन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है? देखिए आप डायग्राम देख के कुछ गेस करने के लिए. Can anybody guess which will be that special case when the perpendicular distance is maximum? Any guesses? तो देखिए ये जे क्वेश्चन है. देखिए मैं कुछ आपको दिखाता हूँ. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो है, सारा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस देखिए. ओके, एंड ड्रॉ ए लाइन विच passes through the point of intersection and joining A. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना दोनों लाइंस का, उसका और ए को ज्वाइन. कैन यू सी दैट every perpendicular distance creates a right angle triangle with AP as hypotenuse. आप डायग्राम में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ले लीजिए. Every perpendicular distance creates a triangle, creates a right angle triangle with AP as hypotenuse, right or wrong? देखिए ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. अगर दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो आपको एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं. उस राइट एंगल ट्रायंगल का भी बाकी दोनों साइड्स अलग है, बट हाइपोटेन्यूज अभी भी एपी है. इज इट क्लियर और नॉट? ओके और नॉट? एंड इस तरफ देखिए, इफ यू टेक दिस एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं, इसका भी हाइपोटेन्यूज एपी है. And if you take this perpendicular distance, this also creates a right angle triangle with AP as the hypotenuse. Okay? Yes or no? Yes or Yes, no? sir. Yes. है ना? So can I say that आपका right angle triangle में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? Which will be the biggest Hypotenuse. side in a right angle triangle? Hypotenuse. So can I say that all perpendicular distances
will be less than AP. Can I say this? Yes, sir. AP से तो कम ही होना चाहिए, बट AP से कभी इक्वल हो सकते हैं? Can the perpendicular distance be equal to AP for any line? अगर इस पॉइंट से AP का अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है, इफ यू ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू AP थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पर्टिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम AP, फ्रॉम A? AP. AP हो जाएगा ना? इसका मतलब Yes, हम sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को हर बार AP से छोटा होगा, बट एक स्पेशल केस है जहां हम AP से इक्वल कर सकते हैं। कैन यू? बट AP से बड़ा कभी नहीं होगा। As long as triangles are getting formed, AP will always be greater than the perpendicular distance. अगर लाइन एग्जैक्टली AP का परपेंडिकुलर है तो उस समय ट्रायंगल क्रश हो जाएगा, ट्रायंगल क्रश हो रहा है। Okay, the perpendicular distance is turning out to be exactly equal to AP. And can you see that that will be the case where the perpendicular distance is maximum? Maximum perpendicular distance कितना है? Maximum perpendicular distance will be equal to how much? Will be equal to AP. Okay. And what is the corresponding line? If you want the corresponding line, क्या करना पड़ेगा? You just find the line through the point of intersection, which is perpendicular to P. AP. So वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? इसमें शायद आपको वो पॉइंट पड़ रहा है ना, करना पड़ रहा है ना, प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 अगर आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद भी आपको ये पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि स्लोप्स तो प्रोडक्ट -1 करना पड़ेगा ना आपको, राइट और रॉन्ग? सो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट Yes. क्या है? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप इन दिस क्वेश्चन? To find AP. टू फाइंड AP. नहीं, AP फाइंड करने के लिए फर्स्ट P फाइंड करना है ना आपको। ये तो आपको क्वेश्चन में दे दिया। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट P। पॉइंट P क्या है? पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। सो लाइंस क्या है? x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दोनों है ना, सो दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे। सो डायरेक्टली x माइनस 2y कैंसिल हो जाएगा ना, सो x माइनस किया तो 2x माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो सिंपली x इज इक्वल टू 2 आ रहे हैं। ओके, एंड y इज इक्वल टू कितना आ रहे हैं? 1/2 आ रहे हैं। देखिए, x इज इक्वल टू 2, y इज 1/2। ओके, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सो इसके बाद हमको क्या, स्लोप ऑफ AP फाइंड करना है, राइट? व्हाट इज स्लोप ऑफ A पॉइंट 2, 1/2। द नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 3। 1, 3 दिया गया ना, सो स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, 5/2 by -1, so -5/2, that is the slope of AP। okay, so अगर स्लोप ऑफ AP आ गया, इसके बाद क्या करना है? स्लोप रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या है?
2/5. My required line should be perpendicular to 5. AP. So AP का slope minus 5/2, required line का slope 2/5. Okay or not? Okay, sir. Okay, sir. So line निकालेंगे. So equation of line क्या होगा? मेरा line का slope 2/5 होना चाहिए and it has to pass through 2, 1/2. सही है? P से जाना पड़ेगा, which is 2, 1/2. So याद है equation y minus y1 is equal to slope m into x minus x1. So 5y minus 5/2 is equal to 2x minus 4. So 2x minus 5y is equal to 4 minus 5/2. So 2x minus 5y is equal to 3/2. आंसर आ गया. मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई किया तो 4x minus 10y is equal to 3. आंसर क्लियर है? Yes, sir. Hmm? Yes, sir. नोट किया? नोट कर लीजिए. और क्वेश्चंस करेंगे? नेक्स्ट पेज में जाओ. Yes, sir. देखिए 3x minus 4y plus 1 is equal to 0. 5x plus y minus 1 is equal to 0. Again, find the equation of a line passing through the point of intersection of these two lines and having equal x and y intercepts. लाइन चाहिए जिसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एग्जैक्टली सेम है. ओके So, कैसे करेंगे? अगेन लेट अस स्टार्ट विथ आवर assumption 3x minus 4y plus 1 plus lambda times 5x plus y minus 1 is equal to 0. Okay. So this is a general line which passes through the point of intersection of these two lines. So इसको standard form में लिखा तो x का साथ क्या? What is the coefficient of x? What is the coefficient? 3 plus 5 lambda. 5 lambda. y के साथ क्या आ रहे हैं? What is the coefficient of y? Lambda minus 4. Okay, minus 4 plus lambda. And what is the constant? 1 minus lambda is equal to 0. Okay. Now both the intercepts have to be same. Intercept x पे क्या करना है? y को 0 पुट करना है. तो अब y को अगर नेग्लेक्ट किया तो x इंटरसेप्ट आप देख सकते हैं, ये 1 माइनस लैम्डा को उस तरफ भेज दिया तो लैम्डा माइनस 1/3 प्लस 5 लैम्डा. ओके. एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट के लिए आपको x वाला पार्ट को 0 करना पड़ेगा. तो अभी भी लैम्डा माइनस 1/λ माइनस 4. ओके.
Clear or not? Yes, sir. Okay. So this implies x-intercept is equal to y-intercept होना चाहिए ना according to the problem. So lambda minus 1 by 3 plus 5 lambda is equal to lambda minus 1 by lambda minus 4. So क्या ये lambda minus 1 cancel कर सकता हूँ? Cancel lambda minus 1 and lambda minus 1? Yes or no? Cancel तो कर Yes. सकता हूँ, but Yes, sir. में देखे numerators is equal to 0 is also solution. 1 equal to 0 हो सकते हैं, right? क्योंकि lambda minus 1 0 है तो 0 equal to 0 आ जाएगा ना, सेम हो जाएगा ना दोनों. क्लियर? अगर लैम्डा 1 नहीं, इसका मतलब लैम्डा टू 1 और अदरवाइज ये दोनों कैंसिल होके आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 lambda. Okay, so which implies 4 lambda is equal to minus 7 and lambda is equal to minus 7 by 4. Okay, is it okay? Yes or no? Yes, sir. इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 भी हो सकता है. ठीक है, जब लैम्डा 0 कांस्टेंट टर्म पूरा 0 हो जाएगा, सही कि नहीं? कांस्टेंट टर्म जब पूरा 0 हो जाएगा, the line passes through what? The constant term is 0, the line passes Origin. through origin. Origin से मान लीजिए पास करते हैं तो x इंटरसेप्ट भी 0 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट भी 0 हो जाएगा. तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट सैटिस्फाई हो, मतलब वो भी हो सकते हैं. lambda 7/4 and again you don't need to worry about fractions. -7/4 का मतलब क्या है? lambda इक्वल टू -7/4 का मतलब है 4 LCM में लाइन 1 के. So what is the answer? Simply 4 times L1 minus 7 is equal to 0. Okay, clear है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब फर्स्ट लाइन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7 टाइम्स सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द. ओके, आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन में जाओ. में जा. Last question in this topic. Okay, so 2x plus 3y minus 2 is equal to 0. x minus 2y plus 1 is equal to 0 with x intercept is equal to 3. ये कंडीशन है इस बार. सो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाना है, x इंटरसेप्ट जो है वो 3 होना चाहिए. ओके, so again let us start the answer. So start with 2x plus 3y minus 2
plus lambda times x minus 2y plus 1 is equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो x टाइम्स 2 प्लस लैम्डा प्लस y टाइम्स 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस ऑफ माइनस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या होना चाहिए? x इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे? y को 0 पुट करेंगे, राइट? ये वाला टर्म को नेग्लेक्ट किया तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा? If you send it on to that side, 2 minus lambda by 2 plus lambda. Okay. Has to be equal to 3. So 2 minus lambda is equal to 6 plus 3 lambda. 4 lambda is equal to minus 4. Lambda is equal to minus 1. Okay. Easy or not? So simply lambda equal to minus 1 जो है यहाँ पुट करना है. So what will be the answer? 2x minus x. X 3y plus 2y 5y minus 2 minus 1 minus 3 equal to 0. Is it okay? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So ये टॉपिक क्लियर है? L1 plus lambda L2 is equal to 0. Yes, sir. So next पेज में जा रहा हूँ. Next topic. Next topic is देखिए ये भी important है. Position of a point with respect to a line. Position of a point with respect to a line. For example, if you take the coordinate system, if you take the coordinate system, and let us say that you have a line L is equal to 0 on this plane. Okay. So can you see that this line divides the plane into two halves, right? This line divides the plane into two parts, first part and second part, right? So mathematically, how do you distinguish between these two areas? First area, second area. What is the equation of the first area? What is the equation of the second area? जैसा कर्व्स का कंडीशंस होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल दिस लाइन इज x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल इक्वेशन है. So let us say that this line is x plus y minus 2 is equal to 0. Okay. So what is the meaning of that? इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है every point on this line, इस लाइन के ऊपर सारा पॉइंट्स कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? मतलब एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा हर पॉइंट का. सो वो x प्लस वाई करके माइनस 2 किया तो इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट आपको 0 देगा, राइट और रॉन्ग? वही है ना इक्वेशन का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लीजिए ये वाला, इस फर्स्ट रीजन में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए. टेक एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट रीजन. Substitute this
substitute the coordinates of this point in this expression, x plus y करके -2 करिए. 0 तो नहीं आएगा ना, 0 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि अगर 0 आया तो वो लाइन के ऊपर चला जाएगा. बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, 0 तो नहीं आएगा. अगर 0 नहीं आया तो क्या आया होगा? आइदर एक पॉजिटिव नंबर आया होगा या एक नेगेटिव नंबर आया होगा. राइट? सही कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the mathematical condition is simply इस लाइन का एक तरफ सारा पॉइंट्स जो है, if you take this is the first side, एक तरफ सारा पॉइंट्स ग्रेटर देन 0 देगा, दूसरा तरफ सारा पॉइंट्स इस एक्सप्रेशन का वैल्यूज लेस देन 0 देगा. समझ में आ रहा है? अगर एक तरफ मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव नंबर आया, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दैट दिस पॉइंट ऑन सब्स्टिट्यूशन इन दिस एक्सप्रेशन गेव यू ए पॉजिटिव आंसर. इसका मतलब है इस पॉइंट के साइड में बहुत सारा पॉइंट्स होगा ना, बाकी सारा पॉइंट्स जो है, ऑल दिस पॉइंट्स ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑन दिस लाइन विल गिव पॉजिटिव आंसर. समझ रहे? एंड इफ ए पॉइंट लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन, अगर उस तरफ पॉजिटिव आंसर आया तो इस तरफ नेगेटिव आंसर आ जाएगा. So the thing that you need to understand is, if this line represents L is equal to 0, one side of the line represents L greater than 0, the other side of the line represents L less than 0. ऐसा जरूरत कि ऊपर वाला ग्रेटर नीचे वाला लेस, ऐसा होने का जरूरत नहीं है. इतना ही बोल रहा हूँ कि एक तरफ ग्रेटर देन साइड होगा, दूसरी तरफ लेस देन साइड. तरफ ग्रेटर होगा, कौन सा तरफ लेस देन करना पड़ेगा. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let us try to solve a question and try to understand how to apply this. नोट किया? नोट किया ना? अगले पेज में जा सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. For example, okay, you have coordinate system. Okay, you have a straight line. मान लीजिए straight line का equation 3x plus 4y is equal to 10. Okay, I'll give you 2 points or I'll give you 1 point. Okay, एक point है 2,3. The question is, does this point lie on the side of origin? ये क्वेश्चन है. देखिए इस लाइन आप देखा तो ऑरिजिन एक साइड में तो है ना, ऑरिजिन विल बी ऑन सम साइड ऑफ दिस लाइन, राइट? क्योंकि ऑरिजिन इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ऑरिजिन पुट किया तो 0 + 0 = 10 आ रहे हैं, which is not satisfying this equation, right? That means origin is not on this line. इस लाइन का कोई either this side or that side तो होना चाहिए. सर आंसर नो होगा. हाँ, now the question is, ये point 2,3 जो है ऑरिजिन का साइड में ही है या ऑरिजिन का ऑपोजिट साइड में है? That's the logic that we apply. फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस लाइन को अच्छा सा L is equal to 0 जैसा लिखेंगे. So the equation of line is 3x plus 4y minus 10 is equal to 0. Okay. So now if you put the coordinate 0, 0
in this expression. ठीक है, at 0, 0, the expression L is 0 plus 0 minus 10, right? Which is less than 0. Okay, इसका मतलब 0, 0 पे लाइन जो है वो लेस देन 0 है. दैट मींस 0, 0 लाइस ऑन लेस देन साइड और ग्रेटर देन साइड. Less than side. लेस देन साइड में है. ओके, व्हाट इज, सॉरी ए नहीं है, मान लीजिए b 2, 3, 2, 3 को b मान लीजिए. सो L इज 3 into 2 6 plus 4 into 3 12 minus 10. इसका वैल्यू 8 इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब 0, 0 जो है वो लेस देन रीजन में है, 2, 3 जो है वो ग्रेटर देन रीजन में है. दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑरिजिन और ऑपोजिट साइड ऑफ ऑरिजिन. Opposite side of the. ऑपोजिट साइड ऑफ ऑरिजिन. ओके, सो 0, 0 यहाँ है तो 2, 3 यही का ही होगा. ओके और नॉट. सो सिंपली आप साइंस देके बोल सकते हैं सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है. क्लियर, इजी. Yes, sir. निकालना है. नेक्स्ट पेज में जाओ. Yes, sir. So you have the coordinate system. The line is 15x minus 3y plus 7 is equal to 0. I've given you 2 points. Okay, -1 comma -2, 3 comma 8. So do these 2 points lie on the same side of the line or on the opposite side of the line? That's the question. So to solve this question, you don't need to draw the line. Simply आपका आंसर क्या है? फर्स्ट एक बार इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, नेक्स्ट इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दोनों का साइंस आए तो सेम साइड, डिफरेंट साइंस आया तो डिफरेंट साइड. ओके, what is the value of L at -1 comma -2? So -15 plus 6 plus 7, okay, which is less than 0. What is the value of L at 3 comma 8? 45 minus 24 plus 7, which is greater than 0. Okay, which is greater than 0. एक नंबर than 0 आया, दूसरा नंबर greater than 0 आया, means they lie on the opposite side of the line. Clear है कि नहीं? Yes, sir. So they lie on the opposite sides of L is equal to 0. Clear है? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. Yes, sir. सो एक लिखता हूं, देखिए 2 points A x1 y1 and B x2 y2 lie on the same side of ax plus by plus c equal to 0 if, what is the condition? These 2 points lie on the same side of the line if, can I say this, ax1 plus by1 plus c by ax2 plus by2 plus c
ग्रेटर देन 0, ऐसे लिख सकता हूँ Yes, sir. क्योंकि दोनों का सेम साइंस आ रहा है ना। दोनों ने अगर डिवाइड क्या होगा, नंबर पॉजिटिव आएगा। ओके, एंड लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स if ax1 plus by1 plus c by ax2 plus by2 plus c is less than 0. Okay, is it clear? Yes, sir. नोट कर लीजिए, समझ में आए तो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ओके, next topic is shifting of origin. Shifting of origin. So assume that you have a coordinate system small x and small y with an origin O. तो विथ रेस्पेक्ट दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लीजिए एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स स्मॉल x, स्मॉल y है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट? द मीनिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम x coordinate is the distance from which axis? X coordinate is the distance Y-axis. axis. Y-axis. And y coordinate is the distance from x axis. X-axis. Okay, इसका मतलब ये वाला लेंथ जो है ओके, इसका मतलब ये वाला लेंथ का वैल्यू है वो x है। दिस लेंथ इज नथिंग बट व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x axis? दिस लेंथ इज y. ओके, स्मॉल x एंड स्मॉल y। अब मान लीजिए let us take the coordinate system from this point to another point। मान लीजिए मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को without changing the direction, I'll shift my coordinate system to a point h comma k, to a point A h comma k. These are the new coordinate systems x and y, capital X capital Y मान रहा हूं। These are the new coordinate axis. Okay,
Small x and small y are the old coordinate axis or original coordinate axis. Capital X and capital Y are the new coordinate axis. Okay. अब मान लीजिए with respect to this green coordinate system, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स अभी भी स्मॉल x स्मॉल y ही रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। चेंज होगा ना, चेंज होगा। क्योंकि रेफरेंस सिस्टम तो चेंज हुआ. So let the new coordinates be P dash capital X and capital Y. Okay. Let the new coordinates be P dash capital X and capital Y. Okay. So original coordinate small x small y with respect to original coordinates small x small y with respect to the original coordinate system. Okay. And the new coordinates of the same point are capital X and capital Y. Okay. So the question is there any relation between these two coordinates? ये दोनों के बीच में कुछ relation है क्या? नहीं. अब ध्यान से देखा तो there is a very simple relation between small x small y and capital X capital Y. क्योंकि देखिए, as we have seen, this length is small x. अब capital X क्या होगा? Capital X is also the distance minus from y h. axis. So new y axis से distance जो है वो capital X होगा ना. And new x axis से जो distance है, this will be capital Y. Okay. And जिस पॉइंट पे हम शिफ्ट किए हैं उसका कोऑर्डिनेट्स h, k. इसका मतलब क्या है? यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस? ये h है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो k होगा ना. सो बाय ज्योमेट्री कैन यू राइट स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h. स्मॉल y क्या होगा? कैपिटल Y प्लस k. ओके और नॉट? समझ में आ रहे? So this is the relation between small x small y and capital X capital Y. Okay. समझ में आ रहे? जी सर। ये तो रेफरेंस फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना आपका फिजिक्स में. आपका रेफरेंस फ्रेम चेंज हुआ तो पोजीशन चेंज हो जाएगा, राइट? सो मैथ्स में बोर्ड लेवल में आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा इसमें. जस्ट यू विल बी गिवन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, यू विल बी गिवन h के कहाँ शिफ्ट हुआ है. नया कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे. एक सैंपल क्वेश्चन देता हूं. ओके, आगे जा सकता हूं? हाँ सर। यस सर। सो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स h, k जहां आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट हुआ, कैपिटल X and capital Y new coordinates. Okay. So for example, if the original coordinates are 2, 3 and you have shifted the coordinate system to -1, 3, what are the new coordinates? What are the new coordinates? आप equations use करके निकाल सकते हैं. Equation क्या है? small x is equal to capital X plus h. इसका -1 को क्या ऐड करने से 2 आएगा? 3. ओके. एंड 3 को क्या ऐड करने से 3 आएगा? 0. हो गया. -1, 2 if it gets shifted to 1, 7, h, के कितना हुआ होगा? -1, 2 को अगर 1, 7 बनाने के लिए मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे? बोल सकते हैं? -2 पे। -2,
-5 -5, 5 राइट? इजी है ना? बेसिकली क्या है, ये दोनों को ऐड किया तो ये आना चाहिए, राइट? सिंपल है। Yes, sir. Point 1 comma 2, I have shifted it to -7 comma -3. What are the new coordinates? What are the new coordinates? 8,5. 8,5 8 comma 5, बहुत ही अच्छा, 5 बहुत इजी लग रहा है। So not just finding the coordinates of a point in the new coordinate system, इससे और मजेदार चीज कर सकते हैं आप, which is the change in the equations of curves. For example, देखिए मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम स्मॉल x एंड स्मॉल y है, ओके? So you have a line 3x plus 4y is equal to 10, okay? With respect to the original coordinate system, the line is 3x plus 4y is equal to 10, okay? Now you have shifted the coordinate system to a point, you have shifted the coordinate system to a point A, which is 5 comma 3. This is the new coordinate system or new reference frame. अब आप यहां बैठ के इस लाइन को ऑब्जर्व किया तो इस लाइन इक्वेशन अभी भी यही होगा या चेंज होगा? Change होगा. Change होगा. चेंज होगा ना, क्योंकि इफ आई से द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज नॉट चेंजिंग, अभी भी मान लीजिए 3x plus 4y इक्वल टू 10 है, यहां से ऑब्जर्व किया तो लाइन तो ऐसा होना चाहिए ना, जो 3x plus 4y इज इक्वल 10 जो है, राइट? तो ये तो पीछे चला गया लाइन, राइट? So what is the new equation of this line with respect to the new coordinate system? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। With respect to old coordinate system or original coordinate system, the equation is 3x plus 4y is equal to 10. What is the equation with respect to the new coordinate system? Okay. Simply एक बात बोलिए, जो original coordinate systems जो है small x small y है ना, because the original axes are small x and small y, the equation is in terms of small x small y, right? न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट जो है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है ना, राइट? द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, राइट? सो जो नया लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन भी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में होगा ना, सही है क्या नहीं? द इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन विल आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, राइट? So if you want to find the new equation of the same line, you just need to convert small x small y into capital X capital Y. So हमारा relation क्या है? Small x is equal to capital X plus 5, small y is equal to capital Y plus 3. सही है? Yes? So what is the new equation? न्यू इक्वेशन इज सिंपली 3 times स्मॉल x के प्लेस में क्या पुट करना है? You just need to convert this equation in terms of capital X and capital Y. So 4 times small y क्या है? Small y is nothing but capital Y plus 3 is equal to 10. So आंसर क्या होगा? 3x plus 4y plus 15 plus 12 कितना? Plus 27 minus 10. So plus 17 is equal to 0. So this is the new equation.
समझ में आया नहीं? सो कोई भी इक्वेशन को ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? You just need to write this relation, and wherever there is small x, you have to substitute the expression in capital X. Wherever there is small y, you have to substitute the expression in terms of capital Y. Okay? समझ में आ रहे? Yes, sir. Not just for lines. कोई भी इक्वेशन के लिए ये काम किया तो नया इक्वेशन आ जाएगा. Clear? So I want you to practice this exercise. बहुत कम क्वेश्चंस होगा, ठीक है, छोटा सा एक्सरसाइज है, आप ट्राई कर लीजिए. ओके, सो दिस विल इफेक्टिवली कंप्लीट द स्ट्रेट लाइंस टॉपिक. नेक्स्ट क्लास में थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स करके विल कंक्लूड द चैप्टर. ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. Okay, we'll stop it here for today.